السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ہے سبق نمبر 32، سبق نمبر 32۔ ہر روز کی طرح آج کا سبق بھی پچھلے سبق کی بات شروع کریں گے۔ پچھلے سبق کو سنتے ہیں پہلے، پھر آج کے سبق شروع کرتے ہیں۔ جس سے ہم کہیں گے وہ بچہ بتائے گا۔ سبق نمبر 31 میں ہم نے پڑھا تھا میم ساکن کے قاعدے، یعنی میم پر جب سکون ہوتا ہے اس کے رولز، اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہم نے پڑھا تھا میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے تو دونوں میم کو ایک ساتھ مکس کرتے ہیں اور غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو میم کو غنہ کرتے ہیں اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کو چھوڑ کر کوئی دوسرا حرف آتا ہے تو میم کو غنہ نہیں کرتے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ چلیے تبھی با اظہار پڑھ کر الیکا مرسلون۔ دھیان سے پڑھیے کیا پڑھ رہے ہیں آپ اور کیا لکھا ہے، دھیان دیجیے اس میں۔ الیکم مرسلون۔ جی یہاں پر بتائیے غنہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ دو جس حرف پہ 2 بار میم آتا ہے تو وہاں پہ گنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ 2 بار میم تو کسی بھی حرف پر نہیں ہے، میم ساکن کے بعد میم ہے، میم خود ایک حرف ہے، کسی حرف کے اوپر تھوڑی ہے وہ، میم تو خود ایک حرف ہے، وہ کسی کے اوپر نہیں بنا ہے۔ میم ساکن ہے، اس کے بعد پھر سے میم ہے، تو میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے تو دونوں میم کو ایک ساتھ ملاتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں۔ جی چلیے بانیہ جی سر۔ پڑھیے۔ لما یشاء پھر سے پڑھیے۔ لما یشاء۔ جی بتائیے غنہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد پھر سے میم آ رہا ہے تو میم کو غنہ کر کے پڑھیں گے، جی میم کو میم کے ساتھ مکس کر کے غنہ کرتے ہیں۔ اور اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ جی چلیے ازکا آپ پڑھیے۔ وما هم بمؤمنین۔ جی بتائیے یہاں پر کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ہم اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے، کس میں غنہ اور کریں اس گے؟ میم پہ میم میم ہے، پہ غنہ کریں گے۔ جی اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ بہت اچھا۔ یہاں پر ایسے جھٹکے سے کیوں پڑھا تم نے مؤمنین، ایسے کیوں پڑھا؟ پڑھا ہے سر؟ میں کہہ رہا ہوں کیوں پڑھا ہے، کیوں نہیں بولا، میں نے بولا کیوں، ایسے کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر ساکن ہے۔ حمزہ کے اوپر ساکن نہیں، حمزہ کے اوپر سکون، اس کو سکون کہتے ہاں ہیں۔ سکون ہے، حمزہ تو کے حمزہ اوپر کے سکون اوپر ہے۔ اگر سکون ہوتا ہے تو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ جی عبداللہ پڑھیے والا۔ جی بتائیے یہاں پر کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے تو اس لیے غنہ کرا کس کو غنہ کیا؟ میم کو۔ میم کو غنہ کیا۔ چلیے اور یہاں پر نون ساکن نون کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے غنہ کریں۔ جی چلیے پڑھیے آپ اس کو اچھے سے غنہ کرتے ہیں۔ ان ربهم بهم نبا لم تنذر۔ جی بتائیے اس میں میم ساکن کے بعد سے تو سبھی حروف نہیں ہے تو پھر غنہ نہیں کریں گے۔ جی یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے اس لیے غنہ کریں گے۔
साकिन के बाद हुरूफ अख्फा में से जाले इसलिए गुन्ना करेंगे। अम लम तुनज़िरहुम, हम्माद, फी कुलूबिहिम मरज़ुन। जी बताइए। सर यहाँ पे मीम साकिन के बाद दोबारा से मीम आ रहा है, इसलिए गुन्ना करेंगे। इसको एक इदगाम शफवी या इदगाम मीम साकिन भी कहते हैं। जी, मीम साकिन के बाद मीम है तो दोनों मीम को एक साथ मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे। ये तमाम गुन्ना शफवी, करेंगे। ये तमाम मीम साकिन भी इसको बोलते हैं। चलिए सारा जी। पढ़िए। फबश्शिरहुम बिआज़ाबिन। आ के ऊपर क्या है? आइन पर। सारा आइन पर क्या है? जी ज़बर। जबर को कैसे पढ़ते हैं? फबश्शिरहुम बिआज़ाबिन। जबर को लंबा नहीं करते, बिआनी, बिआ, बिआजा, 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 आ नहीं, बिआज़ाबिन। बिआ, बस लंबा नहीं करते हैं जबर को। बिआज़ाबिन। बिआजाबिन, अलिफ को लंबा करते हैं जब अलिफ से पहले जबर होता है तो यहाँ पर अलिफ को लंबा करेंगे। बिआजाबिन, फबश्शिरहुम बिआजाबिन। चलिए बताइए यहाँ पर। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। जी बताइए इसमें कौन सा फायदा होगा? मीम साकिन के बाद बा अगर होता है तो मीम को गुन्ना करते हैं, इख्फाए शफवी इसको बोलते हैं। मीम साकिन के बाद अगर बा होता है तो मीम को गुन्ना करते हैं, हुम। गुन्ना हमने बताया था आवाज नाक में रोकते हैं, तो मीम की आवाज को हम नाक में रोक रहे हैं, हुम। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। हरीबा, हुम फीहा। इसको देखिए फिर से पढ़िए, अच्छे से देखिए फिर से पढ़िए। हुम फीहा। यहाँ पे गुन्ना क्यों होगा? क्योंकि मीम साकिन के पहले जो है पेश है। मीम साकिन के पहले पेश हो ऐसा तो हमने कुछ बताया ही नहीं एक बार भी। मीम साकिन के पहले वाला तो हमने कुछ बताया ही नहीं, मीम साकिन के बाद बताया हर जगह। तो मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम होता है तो गुन्ना करते हैं, समझ पा रही हो? मीम साकिन के बाद अगर बा होता है तो गुन्ना करते हैं, मीम होता है तो भी गुन्ना करते हैं। बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ अगर होता है तो गुन्ना नहीं करते नहीं हैं, करते। नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए मीम साकिन के बाद ना तो बा है और ना ही मीम है, तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हुम फीहा, हुम फीहा, बोलिए हुम फीहा। जी। यहाँ पर अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ को लंबा करेंगे, अभी हमने ऊपर भी बताया था अलिफ से पहले अगर जबर होता है तो अलिफ को लंबा करते हैं। चलिए इस सबक को देख लीजिएगा, जिनको थोड़ा कच्चा है आगे वाला सबक देखते हैं। आज का सबक है सबक नंबर 32। यहाँ देखिए हेडिंग हमने डाली हुई है कल्ब। इसका एक नाम और भी होता है इत्लाब, ऊपर हम लिख देते हैं इसको इत्लाब। एक नाम इसका कल्ब है जो लिखा हुआ है और एक नाम इसका होता है इत्लाब। दोनों का मतलब एक ही है, चेंज करना, तब्दील करना, बदलना। कल्ब का मतलब भी तब्दील करना है और इक़लाब का मतलब भी बदलना है। अभी आप सिर्फ क्लास पे ध्यान दीजिए, जब बाद में आप देखेंगे उस वक्त वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। कल्ब का मतलब बदलना, तब्दील करना। अब देखिए तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन मतलब दो जबर, दो जेर,
दो पेश, तीनों को ही तनवीन कहते हैं। दो ज़बर को भी तनवीन कहते हैं, दो ज़ेर को भी तनवीन कहते हैं, दो पेश को भी तनवीन कहते हैं। तो तनवीन जब भी बोला जाएगा तो उसमें ये तीनों इंक्लूड होंगे, तीनों ये शामिल होंगे, दो ज़बर भी, दो ज़ेर भी, दो पेश भी। तनवीन या नून साकिन के बाद, नून साकिन मतलब नून के ऊपर सुकून अगर होगा तो नून साकिन वो कहलाता है। ये हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आए, हरफे बा, बा चाहे किसी भी सूरत में हो, बाद हम बोल रहे हैं, ध्यान लगाइए, बाद तनवीन या नून साकिन के आगे, बाद मतलब आगे, तनवीन या नून साकिन के आगे अगर बा आए, बा चाहे किसी भी सूरत में हो, जबर जेर पेश कुछ भी हो उस पर, तो नून की आवाज को, नून की आवाज को, चाहे वो तनवीन में हो चाहे नून में, नून की आवाज को मीम की आवाज से बदल कर पढ़ते हैं। नून की आवाज को मीम की आवाज से बदल कर पढ़ते हैं। देखिए बदलना यहाँ पर आ रहा है और इसका मतलब भी बदलना है, कल्ब मतलब। तो तनवीन या नून साकिन की आवाज को मीम की आवाज से बदल कर पढ़ते हैं और इसको कल्ब कहते हैं। जब नून की आवाज को मीम से बदल देंगे तो मीम में फिर गुन्ना भी करेंगे, मीम में गुन्ना भी करेंगे। नून की आवाज को जब मीम से हम बदल देंगे तो हम मीम में गुन्ना भी करेंगे, यानी मीम की आवाज को नाक में रोकेंगे। चलिए अब देखिए होता कैसे है, आगे देखते हैं। मम बखीला, मीम नून जबर मन होता है। देखिए मीम अगर नून हम पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे मन, ऐसे मन, ऐसे मन, हम लिख के दिखा देते हैं, ऐसे आप पढ़ेंगे ऐसे मन, मीम नून मन। लेकिन आगे बा भी है, तो अभी हमने कायदा बताया था कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आता है तो नून को मीम से बदल देते हैं। तो अब हमारा कायदा आ चुका है, यहाँ पे कायदा पाया जा रहा है। तो हम नून से, नून की आवाज को मीम में बदल देंगे, फिर हम मन नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे मम, मम। और हमने कहा था कि जब आवाज मीम में बदल लेंगे तो उसको नाक में रोकेंगे और गुन्ना करेंगे। मम बखीला, बा अगर नहीं होगा तो नून को नून ही पढ़ेंगे, फिर बा अगर नहीं होगा तो नून को नून ही पढ़ेंगे, मीम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम हम्माद, अब हम इसको मन ही बोलेंगे, मम अब इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि आगे बा नहीं है और हमारा कायदा मुकम्मल नहीं हो रहा है। मम बखीला, वरना अच्छी तरीके से क्या कीजिए, शुरू में आप लोग उस चीज को जो भी खींचना हो या गुन्ना करना हो थोड़ा अच्छे से करेंगे तो आदत बनेगी। थोड़ा सा करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा भी खत्म हो जाएगा। मम बखीला, आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि छोटा सा मीम बना हुआ है। ये मीम इसलिए बनाया है ताकि आपको यहाँ पे ये पता चल जाए कि यहाँ पर नून की आवाज को मीम से बदलना है। मीम अगर ना भी होगा तब भी हम उसी तरह नून की आवाज को मीम से बदलेंगे। मीम अगर ना भी हो, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूं, मीम नून और बा खा लाम, नून साकिन, ऐसे। अब देखिए मैंने यहाँ पर मीम नहीं बनाया है छोटा वाला, तो भी हमारा कायदा पूरा हो रहा है। नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो हम नून के आवाज को मीम में बदलेंगे। मम बखीला, आगे देखिए यहाँ पर तनवीन के बाद बा है, तनवीन के बाद अगर बा होगा तो नून की आवाज को जो तनवीन में होती है उसको मीम से बदलेंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पीछे हमने बताया था कि दो जबर की तनवीन के बाद अलिफ होता है, बस वो लिखावट में आता है, पढ़ा नहीं जाता, वो अलिफ जायद होता है, इसलिए तनवीन के बाद बा ही है, अलिफ नहीं है। लनस्फ़अन बिन्नासिया,
आगे देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है तो नून की आवाज को मीम से बदलेंगे, मिन बैनि सुल्बी, मिन बैनि सुल्बी। उनकी आवाज को मीम से बदला, गुन्ना किया और हमने पढ़ा। आगे यहाँ पर देखिए तनवीन है दो जेर की, उसके बाद बा है। तनवीन के बाद अगर बा होता है, हमारा कायदा कहता है कि नून की आवाज को उसमें मीम से बदल देंगे और गुन्ना करेंगे। किरामिन बररह, किरामिन बररह। आगे देखिए नून साकिन के बाद बा है, नून साकिन के बाद बा है, नून साकिन के बाद बा होगा तो हमारा कायदे के मुताबिक नून की आवाज को मीम से बदलेंगे और गुन्ना करेंगे। मिन बादी, देखिए फिर से हम बता रहे हैं कि ये मीम मैटर नहीं करता है, मीम ना भी हो तब भी रूल अपना वो उसी तरीके से काम करेगा। मिन बादी, आगे देखिए तनवीन के बाद बा है तो नून की आवाज को मीम से बदलेंगे और गुन्ना करेंगे, पढ़ेंगे। मुतहहरतिन बिअयदी सफरा, अम्मार नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारा चेहरा सही से दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद बा है तो कायदे के मुताबिक नून की आवाज को मीम से तब्दील करेंगे और गुन्ना करेंगे। बिज़ंबिहिम, आगे देखिए यहाँ पर दो पेश की तनवीन है, उसके बाद बा है तो वही तनवीन के बाद बा अगर होता है तो नून की आवाज को जो तनवीन में होती है मीम से तब्दील करेंगे, मीम से बदलेंगे और फिर गुन्ना करेंगे, पढ़ेंगे। खबीरुम बिमा तामलून, खबीरुम बिमा तामलून। आगे देखिए दो पेश की तनवीन है, उसके बाद बा है। तनवीन के बाद अगर बा होगा तो नून की आवाज को मीम से बदलेंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। समीउन बसीरुन, ठीक है। वक्त के जो सबक था वक्त का, उसमें हमने बताया था कि जब वक्त करते हैं कहीं पर तो लास्ट वाले हर्फ पर सुकून लग जाता है, लास्ट वाले हर्फ पर सुकून लग जाता है जब वक्त करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वक्त करेंगे तो रा के ऊपर सुकून लग जाएगा, रा के ऊपर सुकून लग जाएगा तो रा साकिन हो जाएगी। तो रा साकिन अगर होता है, रा साकिन अगर होती है और उससे पहले या साकिन होती है, रा साकिन से पहले या साकिन अगर होती है तो रा को हर सूरत में हर हाल में रा को बारीक पढ़ते हैं, फिर उसको मोटा नहीं पढ़ते। समीउम बसीर, आगे देखिए यहाँ पर नून साकिन है, उसके बाद बा है। नून साकिन के बाद अगर बा आता है तो नून की आवाज को मीम से बदलते हैं और ना करके पढ़ते हैं। कल्ला ला युंबज़न्ना, आगे देखिए दो पेश की तनवीन है मीम पर, उसके बाद बा है। तनवीन के बाद अगर बा आता है तो नून की आवाज को जो तनवीन में होती है मीम से बदलते हैं और गुन्ना करते हैं, पढ़ते हैं। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, यहाँ पर भी वही बात, दो पेश की तनवीन उसके बाद बा है। तनवीन के बाद अगर बा आता है तो तनवीन में जो नून की आवाज है उसको मीम से बदलते हैं और ना करते हैं।
रजुउन बईद। आगे देखिए, दो पेश की तनवीन है, उसके बाद बा है। तनवीन के बाद अगर बा आता है तो तनवीन में जो नून की आवाज होती है उसको मीम से बदलते हैं, गुन्ना करके पढ़ते हैं। रसूलुम बिमा ला तहवा। रसूलुम बिमा ला तहवा। ये था कल्ब। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आता है तो नून की आवाज को मीम की आवाज से बदलते हैं, गुन्ना करके पढ़ते हैं। इसको कल्ब या इक़लाब कहते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे और पीछे वाले सबक को भी दोहराते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।